السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاست میں نئے 3,09,000 راشن کارڈز کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ بالکنڈہ منورکاپور سنگم عمارت میں منعقدہ پروگرام میں ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کے ہاتھوں مستحق اہل افراد خاندان کو فوڈ سیکیورٹی کارڈز کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ رکن اسمبلی بودھن شکیل احمد نے بودھن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ مستحقین میں نئے راشن کارڈز کی جرائی و استفادہ کنندگان میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کی تقسیم، طلباء میں کتابوں کی تقسیم کرتے ہوئے تعلیم کی جانب کیا متوجہ۔ بودھن شکیل احمد کا مصروف ترین دورہ۔ 2.5 کروڑ روپے کے مالیاتی رقم سے نظام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل میں 120 کریٹیکل بیڈز کا قیام عمل میں لانے والے کرکٹر یوراج سنگھ کو متحدہ ضلع نظام آباد کے کویتا نے کیا اظہار تشکر۔ سی ایم KCR کی قیادت میں ریاست تلنگانہ ترقی کی جانب گامزن۔ آرمور میں مختلف ترقیاتی کاموں کا PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے کیا افتتاح۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست میں سطح غربت سے تعلق رکھنے والے افراد خاندان کو 83 لاکھ راشن کارڈز ہونے کی بنا پر نئے درخواست گزاروں کی جانب سے داخل کردہ 3,09,000 افراد کو راشن کارڈز کی منظوری عمل میں لانے کا ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے کیا انکشاف۔ بالکنڈہ منورکاپور سنگم عمارت میں نئے راشن کارڈز کی فراہمی کے لیے منعقدہ پروگرام میں ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے شرکت کر کے منظور کردہ راشن کارڈز کو مستحقین میں فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ریاست میں فی الحال 83 لاکھ راشن کارڈز موجود ہے اور نئے راشن کارڈز کے لیے 4 لاکھ افراد کی جانب سے درخواست حاصل کرنے کی بنا پر 3,09,000 افراد کو نئے فوڈ سیکیورٹی کارڈز کی منظوری حاصل ہونے پر آج دیگر حلقوں میں فراہمی عمل میں لانے کا انکشاف کیا۔ నేను అడిగిన ఆయనని, అయ్యా నువ్వు కూడా ఎంపీ కదా, ప్రధానమంత్రి కింద నువ్వు ఉంటావు కదా, నేను ఎట్లయితే ముఖ్యమంత్రి కింద ఉంటానో ఎమ్మెల్యేగా, నువ్వు ప్రధానమంత్రి కింద ఉంటావు కదా ఎంపీగా, నేను 3 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పించిన బాలకొండ నియోజకవర్గంలో ఈ 2 ఏళ్లలో నువ్వు ఎన్ని ఇప్పించినావో ఒకసారి లెక్క చెప్పు స్వామి అని అడిగిన నేను। సప్పుడు చేయరు దాన్ని। ప్రధానమంత్రి రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి పైసలు ఇప్పించే కార్యక్రమం చెయ్యరు పేదవాళ్ళు, ఒక్కసారి వాళ్ళేమో చెయ్యరు। మనం చేస్తున్న వాళ్ళ మీద అడ్డగోలుగా మాట్లాడాలి। దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి। విషయం నాకెందుకు అనుకోవద్దు, ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పిన పేదవారికి సంబంధించిన విషయాలే చెప్పిన। పొరపాటు చేస్తే మోసపడతాం, మోసపోతాం। నేను ఈ 2.5 సంవత్సరాలుగా అన్ని చూసే మాట్లాడుతున్నా। నేను ఏదో నేను గెలంగా ఆయన గెలంగా వచ్చి మాట్లాడతలేను। నేను చూసిన ఈ 2.5 ఏళ్ళు చూసినాకనే ఒక్కొక్కటి సబ్జెక్ట్ వైజ్ మాట్లాడుతున్నా, నేను పథకం వైజ్ మాట్లాడుతున్నా। نظام آباد میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد۔ ضلع نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی کی صدارت میں منعقدہ پرجاوانی کو خصوصی رد عمل حاصل ہونے کے علاوہ ضلع کے دیگر مقامات سے تعلق رکھنے والے عوام نے، جن میں کنٹیشور بائی پاس روڈ نیو ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں زیر تعمیر موبائل ٹاور کو نکالنے سے متعلق مطالبہ کیا گیا۔ LIC نیو ہاؤسنگ بورڈ ویلفیئر سوسائٹی ممبران مقیم افراد کی جانب سے ضلع کلکٹریٹ کے سامنے احتجاج منعقد کر کے پرجاوانی کے تحت کلکٹر کو اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ اسی طرح سے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار تمانیت کے تحت روزگار حاصل کرنے والے مزدوروں و مختلف برادری سے تعلق رکھنے والوں کو
तकसीम करके SC/ST सब प्लान के तहत मुआवजे की अदायगी अमल में लाने के लिए मेमो व मकतूब मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा मेमो को फिलफूर मनसूख करने के लिए AIAWU BKMS KVPS मेम्बरान ने धरना मुनक्किद करके कलेक्टर को मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के हाथों कैंप ऑफिस पर मुस्तहिकीन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज कैंप ऑफिस पर हलके के तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि TRS सरबराह कल्वाकुट्ला चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तवील जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की अहम तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के मसाइल की यकसवी के लिए मुख्तलिफ फलाई स्कीमात को मुतारफ की गई है, जिनमें रायतु बंधु, रायतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात व दीगर स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR जो गरीबों और बेयार व मददगारों के मसीहा माने जाते हैं, शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के तहत गरीब व मुस्तहिक खानदानों की लड़कियों की शादी ब्याह के लिए 1,116 की माली इमदाद दी जा रही है, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनगान ने रियासती वज़ीर आला KCR व रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। तिब्बी आलात की फराहमी युवराज सिंह से मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता का इजहार तशक्कुर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने निज़ामाबाद हॉस्पिटल में खुसूसी बेड्स के क़याम से मुतालिक अहम तरीन दिलचस्पी लेते हुए कई मरतबा UV कैन फाउंडेशन के जिम्मेदार मेम्बरान से मुशावरत करने के अलावा गुज़िश्ता माह में UV कैन फाउंडेशन CEO ऋषभ बिश्नोई से कई मरतबा मुलाकात करके निज़ामाबाद हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर बेड्स का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से अपील की गई, जिस पर UV कैन फाउंडेशन के जिम्मेदार से UV कैन फाउंडेशन और UV स्ट्रॉन्ग टू वेल की जानिब से तेलंगाना के जिले निज़ामाबाद के निज़ामाबाद सरकारी हॉस्पिटल में 2.5 करोड़ रुपए पर मबनी 120 क्रिटिकल बेड्स आलात फराहम करने पर MLC के कविता ने हिंदुस्तानी क्रिकेटर युवराज सिंह का शुक्रिया अदा किया। Nizamabad is my constituency. The people here have approached me who represent the foundation, saying that we are willing to donate so and so. So what I had suggested was, although you want to serve Nizamabad, let us make a statewide MOU. I had spoken with Director Health and TSMIDC Director here, who is head of TSMIDC, that we source all the equipment. So any equipment that comes into government hospitals has to be properly inventoried, and together can decide, which district probably needs more, where do we need the help more, etc. And accordingly it can be distributed. So it will ultimately fit in the overall aims and objectives of the foundation, and also will be more effective in terms of serving the people of Telangana. So that was my proposal. I like what you planned for Nizamabad. In fact, I had spoken to my collector, he is very happy. आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर के नवनता सिद्दुला गोट्टा पर ज़ेरे तामीर घाट रोड के तामीरी कामों के जायजा लिया और तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन आशनागारी जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर के नवनता सिद्दुला गोट्टा पर ज़ेरे तामीर घाट रोड के तामीरी कामों का जायजा लेकर RNB अहदेदारान को तामीरी कामों से मुतालिक हिदायत जारी की और शहर की वार्ड नंबर 30 में CC ड्रेनेज, CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने के बाद इन्होंने बार एसोसिएशन मेम्बरान की तहनीत अमल में लाते हुए शहर के मुस्तहिकीन को नए राशन कार्ड्स की फराहमी अमल में लाकर MPDO दफ्तर के अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि अहल मुस्तहिक अफराद खानदान की शनाख्त करके राशन कार्ड को जारी करने की हिदायत दी। इसी तरह से आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने आर्मर MRO दफ्तर के सामने BJP दलित मोर्चा, BJP BJYM गिरिजना मोर्चे के कायदीन ने मोची बाजा बजाने वाले अफराद को 5,000 पेंशन देने से मुतालिक मुनक़दा एहतजाज पर मुबनी याददाश्त हासिल की। रियासती असम्बली स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर के अहल व मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड्स की फराहमी अमल में लाई।
रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर के रेड्डी संगम फंक्शन हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करके शहर के अहल मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों को फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत की दौरे इख्तितार में चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को फाका कशी से दूर करने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी कार्ड को मंजूर करने का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आसरा पेंशन, ज़ईफ अफराद व बीड़ी वर्कर्स को पेंशन की फ्राहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने शिरकत की। ఈ మూడు మండలాలు బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ కలుపుకుంటే మొత్తం కుటుంబాల సంఖ్య 34,865. ఇప్పటికే కార్డు ఉన్న వారి సంఖ్య 30,819. కొత్తగా ఈరోజు ఇచ్చేటువంటి కార్డుల సంఖ్య 666. అవి ఇవి కలుపుకుంటే 31,485. అంటే 34,865 కార్డు ఇళ్ళుంటే గృహాలుంటే 31,485 కార్డు ఇస్తున్నాం. అంటే 90%. ఈ ఎవరు మిగిలిపోయిన అబ్బిగా ఇప్పుడు నేను కూడా దరఖాస్తు పెట్టి నాకు కూడా వస్తుందేమో తెల్ల కార్డు ఇట్లా. ఇంతమంది కార్డు వస్తున్నాయి, సంతోషం. మీ అందరికీ తీసుకోబోతున్నటువంటి మా సోదరులకు సోదరిమణులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने आज दीगर मुकामात का दौरा करते हुए शहर के डिवीजन नंबर 50 शिवाजी नगर में SC/ST फंड से मुनक्किद होने वाले तामीरी कामों के अलावा 15 लाख रुपए पर मबनी शहरी तरक्की फंड से मुनक्किद होने वाले CC रोड कलवट के तामीरी कामों के पास भूमि पूजा अंजाम देकर आगाज अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 22 में तकरीबन 17 लाख रुपए से शहरी तरक्की के तहत किए जाने वाले पार्क की हसारबंदी कामों और 10 लाख रुपए की लागत से शहरी तरक्की के तहत WBM रोड कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि अर्बन रुकन असम्बली बिगाड़ा गणेश गुप्ता की क़यादत में कई तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर राघवेंद्र, पंचारेड्डी, लावण्या, धर्मपुरी, सत्यनारायण व दीगर ने शिरकत। అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతా ఉంది. దీనికంతా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు చూపు, ఆయన చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలే కారణం. మరి అందులో భాగంగా మన నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఎంతో అభివృద్ధి మన నిజామాబాద్ నగరంలో జరుగుతుంది. గత 7 ఏళ్ల కిందట చూసుకున్నా ఇప్పుడు చూసుకుంటే మన నిజామాబాద్ నగరం అనేది ఎంతో మార్పు వచ్చింది. ఎన్నో చక్కగా రకరకాలైనటువంటి సుందరీకరణ పనులు, అలాగే అభివృద్ధి పనులు ప్రతి వార్డులోనూ కూడా చక్కగా జరుగుతున్నాయి. चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने किया इंकशाफ। इल्ला रेड्डी हल्का असम्बली के मंडल के मुकाम पर रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा फूड सिक्योरिटी कार्ड्स को मुस्तकिल में फ्राहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में मुकामी रुकन असम्बली जाजुला सुरेंद्र रेड्डी व MP बीबी पाटिल ने शिरकत करते हुए मुस्तहिक अफराद खानदान को नए राशन कार्ड्स की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तितार में कई तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इल्ला रेड्डी म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, ZPTC MPP, मार्केट सोसाइटी चेयरमैन, मंडल TRS पार्टी सदर, रायतू बंधु सदर, अवामी नुमाइंदे व खादिन व कारकुनान ने शिरकत की। जिले के विजिलेंस ओहदेदार नारायणा ने दीगर ओहदेदारान के हमरा मोरतार देहात के एलेलावाड़ा इलाके में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल का जायजा लिया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली के मुकाम पर जिले के विजिलेंस ओहदेदार नारायणा ने APO शकुंतला, पंचायत सेक्रेटरी राजा कृष्णा के हमरा मोरतार देहात में वाक़े एलेलावाड़ा के इलाके में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल का मुशाहिदा करते हुए प्लांटेशन व सैनिटेशन का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ सदर मुदर्रिस बालाचंद्रम, गंगाधर, असातिज़ा साहिबीन, प्रभाकर, चारी, विनय, शैलजा व दीगर मौजूद थे। रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन ने अहल व मुस्तहिक अफराद में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई।
डिचपली मंडल में महकमे रिवेन्यू की जेर निगरानी में नए राशन कार्ड की फराहमी के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए मुस्तहिक अफराद में राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि निजामाबाद रूरल हल्के के 7 मंडलों की हुकूमत के हिसाब किताब के तहत जो कार्ड मौजूद है इसमें नए 16,257 फूड सिक्योरिटी कार्ड की फराहमी अमल में लाई जा रही है। माबाकी कार्ड को अगस्त 15 तारीख तक हवाले किए जाने का इजहार करते हुए कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले अवाम की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करके अहल व मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड की फराहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर मुस्तहिक अफराद को नए राशन कार्ड्स की फराहमी अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज कैंप ऑफिस पर अहल व मुस्तहिक अफराद में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की जेर क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को मुतारफ करके तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाते हुए फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के लिए अवाम की जानिब से हासिल करदा दरख्वास्तों की शिनाख्त मुख्तलिफ सतहों पर जाँच पड़ताल करने के बाद आज अहल व मुस्तहिक अफराद में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाने का इंकशाफ किया। ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయంటే అసలు అరువులు ఉన్నవారికి రేషన్ కార్డు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఒక ఇంట్లో 5 6 రేషన్ కార్డులు చేసిండు. ఈ అంతా కూడా మనం క్లియర్ చేయడానికి చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఏ సంక్షేమ పథకం చేసినా అది రైతు బంధు ఉండని, అది కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఉండని, అది గర్భిణీ మహిళలకు కానివ్వండి, ఇతర సంక్షేమ పథకాలు పెన్షన్లు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా మీరు అంటే అస్సలు అర్హులున్న వారు లబ్ధి పొందే విధంగా అన్ని కూడా రికార్డ్స్ చక్కగా చేసుకొని మన కొత్త రాష్ట్రం ఈ కొత్త రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని విధాలుగా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి। बैरूनी ज़ायरीन के लिए 10 अगस्त से उम्रे की बहाली, हिंदुस्तान के मशमूल 9 मुमालिक के रास्ते परवाजों की इजाजत नहीं। सऊदी अरब ने इतवार को ऐलान किया है कि 10 अगस्त से बैरूनी ज़ायरीन के लिए उम्रा खिदमात दोबारा शुरू कर दी जाएगी। सरकारी खबर रसा इदारा SPA ने ये बात बताई। हज के कामयाब इनेकाद के बाद इतवार से सऊदी शहरियों और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए उम्रे का आगाज होगा। हरमैन शरीफैन के मामलात से मुतालिक इदारे के सरबराह अब्दुर्रहमान सुदैस ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो मक्का मुकर्रमा में उम्रा ज़ायरीन और दीगर मुसल्लियों के इस्तकबाल के लिए तैयारियों को खतियत दे। सुदैस ने मुतालिका महकमे के मुलाजमीन से कहा है कि वो मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में तमाम एहतियाती इक़दामात करे। इससे क़ब्ल वज़ारत हज व उम्रे ने इस माह के अवाइल में उम्रा ज़ायरीन की दरख्वास्तों पर कार्रवाई रोक दी थी ताकि आज़मीन हज पुरसुकून तौर पर मनासिक हज अदा कर सके। इस दौरान इतवार को हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा में मुकामी अफराद के लिए मखसूस गेटें खोल दिए गए, लेकिन सख्ती से समाजी दूरी पर अमल किया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का लिहाज रखा जा रहा है। हरमैन शरीफैन की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक 1 मुहर्रम 1443 हिजरी से बैनुल अक़वामी ज़ायरीन के लिए उम्रा बहाल किया जाएगा। 9 मुमालिक बमशमूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और लेबनान के सिवा तमाम मुमालिक को रास्ते परवाजों की इजाज़त होगी। मज़कूरा मुमालिक के ज़ायरीन को ममलिकत में पहुँचने से कबल किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। कोविड-19 के खिलाफ टीका अंदाजी भी लाजमी है। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन की मुकम्मल डोज लेनी होगी। चाइना की वैक्सीन की मुकम्मल डोज लेने वालों को फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन का बूस्टर शॉट लेना होगा। 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के आज़मीन को उम्रे की इजाज़त होगी। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रे की जानिब से मुसल्लिमा उम्रा एजेंसी के जरिए सफर किया जा सकेगा। कोरोना केसों में इजाफा, अवाम लापरवाही ना करें, सुपरिंटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल।
गांधी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने दावा किया कि कोरोना पॉजिटिव केसों में फिर इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि रोजाना हॉस्पिटल में कोरोना के 45 अफराद दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे में अवाम को चाहिए कि लापरवाही से काम ना ले। इन्होंने कहा कि इब्तिदा में 30 ता 40 अफराद दाखिल किए जा रहे थे, ताहम तकरीबन 45 अफराद दाखिल किए गए। इलाज और सेहतियाबी के लिए 2 ता 3 हफ्ते दरकार होंगे। कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में एहतियात जरूरी है। कोरोना केसों में कमी हालिया अरसे में हुई थी, ताहम अब इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज 25 अफराद को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। जितने अफराद को डिस्चार्ज किया जा रहा है, इससे दुगनी तादाद में मरीज दाखिल किए जा रहे हैं। डिस्चार्ज होने वालों की तादाद में इजाफा होना चाहिए था, ताहम इसके बजाय मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो अच्छी अलामत नहीं है। गांधी हॉस्पिटल में फिलहाल तकरीबन 400 अफराद कोरोना से मुतासिर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला से कोरोना मुतासरीन यहाँ रुजू हो रहे हैं, ताहम ज्यादातर मामला खम्मम और नलगोंडा के हैं। इन्होंने कहा कि खम्मम के ज्यादातर केसेस ब्लैक फंगस के हैं। इन्होंने कहा कि हुजूम से इस मर्ज के फैलने के ज्यादा इम्कानात है, चाहे वो इंतखाबात हो या तहवार। भीमगढ़ मंडल में आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगढ़ मंडल में आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए फूड सिक्योरिटी कार्ड राशन कार्ड की तकसीम अमल में आई, जिसमें मोहम्मद अब्दुल मोइस जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर और दोमकुंटी नरसैया सदर भीमगढ़ टीआरएस खास ZPTC रवि और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत। इस मौके पर मुस्तहिक अफराद में नए राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना हर तबके के साथ इंसाफ कर रही है। वो गरीब अवाम की देरीना आरजुओं को पूरा करते हुए नए राशन कार्ड की इजराई अमल में लाई है। हुकूमत की हर स्कीम रास्त अवाम तक पहुँच रही है। आज रियासती वज़ीर बिरला पठान के साथ की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूर शुदा चेकों की तकसीम अमल में आई। मैं और मेरे साथी ZPTC चोटपल्ली रवि, TRS मंडल कन्वीनर दोनकंटी नरसैया, सोसाइटी चेयरमैन नरसन्ना, MPP महेश, शर्मा नायक और सरपंच MPTC तुक्का जी नायक, हम सब मिलकर आज इन चकों को तकसीम अमल में लाए। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जो चक है, इसके अलावा हमारे बालकोंडे MLA प्रशांत रेड्डी साहब ने तरक्याती कामों के अलावा खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इन गरीब लोगों को अपनी कोशिशें काविशों से चीफ मिनिस्टर से ये जो चक मंजूर करें, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। चारशुम्बे को महेश कुमार गौड़, मधु गौड़ याशकी की निजामाबाद आमद जबरदस्त खैर मकदम करने का कांग्रेस कायदीन कारकुनान की तैयारियां। जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले अहम कांग्रेस कायदीन महेश कुमार गौड़, मधु गौड़ याशकी बतारीख 28 जुलाई बरोज़े चारशुम्बा ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा निजामाबाद आने पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की जानिब से जबरदस्त खैर मकदम की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में 2 दिन कबल कांग्रेस कायदीन से तजावीज़ तलब करने के लिए कांग्रेस भवन में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास में सदर जिले कांग्रेस कमेटी मानला मोहन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने कांग्रेस कायदीन व कारकुनान से मशावरत की। इस मौके पर माजिद खान TPCC, मोहम्मद अब्दुल इजाज चेयरमैन सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, सीनियर हरकियाती नौजवान कायद मसूद अहमद इजाज, उबैद बिन हमदान रियासती सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल कांग्रेस, मोहम्मद ईसा स्टेट डेलीगेट, मोइन यूनुस, MA वली, नवाज हुसैनी, अफान बिन अब्दुल्ला के अलावा कसीर तादाद में कांग्रेस कायदीन व वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। నెల 29 ఎల్లుండి బుధవారం రోజున మొట్టమొదటిసారిగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్గా నియమింపబడ్డ తర్వాత వస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్వాగత ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది। ఆ కార్యక్రమం సన్మాన కార్యక్రమం స్వాగతం పాటు
సన్మాన కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సన్మాన కార్యక్రమం లక్ష్మీ కళ్యాణ మండపంలో 2 గంటల ప్రాంతంలో रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की जेर निगरानी में शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रिव्यू मीटिंग का इनेकाद। बोधन शहर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की जेर निगरानी में रिव्यू मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें गवर्नमेंट मधु मलंचा जूनियर कॉलेज की कदीम बोसीदा इमारत की मरम्मत, फर्नीचर, टॉयलेट्स व दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए मधु मलंचा कॉलेज की कदीम इमारत का जायजा लेकर तुलबा में मुफ्त दरसी किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल श्रीमती लता शिवा कुमार, असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। मोरतार में आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। मोरतार में आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम अमल में आई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से ZPTC रवि ने शिरकत की। इस दौरान मोरतार मंडल के कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मोरतार मंडल के 10 देहातों में 420 नए राशन कार्ड्स की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब अवाम में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड मंजूर किए गए हैं, इस पर हम तमाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब और हल्का असम्बली बालकोंडा के MLA व RNB के वजीर प्रशांत रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ओहदेदार, सियासी और समाजी कायदीन मौजूद थे। भीमगढ़ बल्दिया में आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगढ़ बल्दी में आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से भीमगढ़ बल्दी चेयरमैन मल्ला राजश्री लक्ष्मण ने शिरकत की। इस दौरान भीमगढ़ बल्दी माउन अजमतुल्ला मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब अवाम में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड मंजूर किए गए हैं, इस पर हम तमाम भीमगढ़ बल्दी के अराकीन व माविनीन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और हल्का असम्बली बालकोंडा के MLA व RNB वजीर प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि हुकूमत तेलंगाना की हर स्कीम रास्त अवाम तक पहुंचाएंगे। इस प्रोग्राम में TRS टाउन प्रेसिडेंट मल्ला लक्ष्मण, काउंसलर CH गंगाधर, काउंसलर शमीम बेगम, मोहम्मद अब्दुल नईम, मुख्तलिफ ओहदेदार, सियासी और समाजी कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के हम सुर्खियों पर। रियासत में नए 3,09,000 राशन कार्ड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। बालकुंडा मनोरकापुर संगम इमारत में मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों मुस्तहिक अहल अफराद खानदान को फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की फराहमी अमल में लाई गई। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने बोधन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुस्तहिकीन में नए राशन कार्ड की जुराई व इस्तिफादा कुरनगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम, तुलबा में किताबों की तकसीम करते हुए तालीम की जानिब किया मुतवज्जे। बोधन शकील आमिर का मसरूफ तरीन दौरा। 2.5 करोड़ रुपए के मालियाती रकम से निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 120 क्रिटिकल बेड्स का क़याम अमल में लाने वाले क्रिकेटर युवराज सिंह को मुत्तहिदा जिले निजामाबाद के कविता ने किया इजहार तशक्कुर। CM KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़न। आरमूर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।